Okay, good morning, students. So in previous class, I have discussed about what symmetrical component, right? So in today class, we'll discuss about how to represent how to आपका circuit diagram होगा, how to make a circuit diagram for positive sequence, negative sequence, and zero sequence for generator, transformer, transmission line, right? सो हम लोगों ने ये क्या क्या मुझे थ्री while the study of what positive sequence network, positive sequence component, negative sequence component and zero sequence component, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। ये क्या था, सबसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मेरा ये था कि if a three phase system is balanced, only positive sequence components are present, right? And observation second मेरा ये था कि if a three phase system is unbalanced, all the three sequence components जो थे वो may be present, right? Okay, and आपके जो balance neutral थे, that is balance neutral current consisting of what, only zero sequence components, right? And next observation ये मेरा, that is point six, six observation number six is नहीं sorry, observation one पढ़ा था, two and three and fourth, observation number fourth. Observation number fourth is for the flow of positive and negative sequence, positive and negative sequence current. There are आपका क्या होता है कि the return path through ground is not compulsory, right? But and the condition of neutral has got not affected by the following of positive and negative sequence of current, right? So observation number four is for the flow of, these observations are important when you are going to solve the examples, right? Questions based on symmetrical components. Through ground is not compulsory. ठीक है, दैट मीन्स कि आपका द कंडीशन ऑफ न्यूट्रल जो है, कंडीशन हैज नॉट आपका अफेक्टेड फॉर द फ्लो ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड सीक्वेंस कंपोनेंट्स, राइट? सपोज ये आपका मान लो सप्लाई साइड है एंड दिस इज कनेक्टेड टू लोड एंड दिस इज फेज आर, वाई, बी एंड दिस इज द न्यूट्रल, दैट इज आई एम। आपका सप्लाई साइड है and this is load is connected, right? मान लो आपके जो है ये पॉजिटिव सीक्वेंस करंट इज गिवन IR1 is 10 ampere, IB1 is -5 ampere and IB1 ये आपका हो जाएगा -5 ampere, right? इससे इस ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चलता है कि आपका जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल करंट जो होते हैं इज गॉट नॉट अफेक्टेड फॉर द फ्लो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस करंट। ऑब्जर्वेशन नंबर 5, so for the flow of zero sequence current, return path through ground is compulsory, right? And ये आपका न्यूट्रल करंट अफेक्टेड होगा by the flow of what, for the flow of zero sequence current only,
for the flow of zero sequence current. Okay. So these are the observations you have to follow while solving the questions, right? Next topic is sequence network. How to draw the positive, negative, and zero sequence for the power system components, right? Sequence network. Generate representation. एंड हम लोगों ने इस यूनिट 2 में शायद पढ़ा था इनसे रिप्रेजेंटेशन वही होंगी जैसे कि आपका हम लोगों ने पढ़ा था कि जनरेटर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। इसमें क्या करना है, बैलेंस सिस्टम हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, सिर्फ सिंगल फेज को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो जनरेटर वाले में क्या केस था, आपका एक ईएमएफ था और आपका क्या था, एक रिएक्टेंस था, राइट। एंड अगर आप पॉजिटिव सीक्वेंस की बात करेंगे तो पॉजिटिव सीक्वेंस का जो रिप्रेजेंटेशन होता है फॉर द जनरेटर के लिए क्या होता है कि आपका एक ईएमएफ होगा एंड a voltage source behind the reactance, right, ओरिजिनल नेटवर्क जो आपका पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क होगा, क्योंकि आपका जो पॉजिटिव बाकी जो निगेटिव सीक्वेंस एंड जीरो सीक्वेंस होगा उसमें आपके ईएमएफ जनरेट नहीं होंगे, राइट। ये आप लोग डिटेल में अगर पढ़ना, क्योंकि अभी टाइम है ही नहीं जो मैं इतना डिटेल में पढ़ाऊँ, तो आप लोग टेक्स्ट बुक से पढ़ लीजिएगा कि क्यों ऐसा होता है। वैसे क्योंकि जो ओरिजिनल नेटवर्क होता है उसमें क्या होता है कि आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मूवमेंट होते हैं, राइट। तो इन सच सिचुएशंस में क्या होता है कि ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस, हम लोगों ने पढ़ा था कि पॉजिटिव सीक्वेंस क्या फॉलो करता है, ओरिजिनल जो आपका मूवमेंट होता है उसे फॉलो करता है, राइट। तो उस केस में क्या होगा कि आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, बट इन केस ऑफ नेगेटिव सीक्वेंस एंड जीरो सीक्वेंस में आपका ईएमएफ की वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी। So how to represent positive sequence for general representation is like that. This is EMF here as E1 and this is XG1 and ये आपका क्या हो जाएगा IR1, राइट। एंड ये आप लोग को फिगर यही जैसे वन हम लोगों ने जो यूज कर रहे हैं, ये दिस इज फॉर पॉजिटिव सीक्वेंस, टू फॉर नेगेटिव सीक्वेंस एंड जीरो फॉर जीरो सीक्वेंस। So this is VR1 and VR1 is written as E1 minus IR1 XG1 and ये आपका क्या है, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। एंड नेक्स्ट वन इज नेगेटिव सीक्वेंस। नेगेटिव सीक्वेंस में क्या बोला कि आपका जो ईएमएफ है दैट विल बी जीरो, only reactance will be present. So this is XG2 IR2 VR2 and VR2 will be minus IR2 XG2। ये आपका हो गया नेगेटिव सीक्वेंस।
आपके हम इसकी एक नेटवर्क दिए रहेंगे, एक आपका पूरा सिंगल लाइन डायग्राम गिवन होगा, उससे पूछा जाएगा कि आपको इसका जो है कि जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, ये तो हम लोगों ने इम्पीडेंस डायग्राम बनाना सीख लिया कि कैसे हम लोग इम्पीडेंस डायग्राम आपका जो है ड्रॉ करते हैं, राइट? अब उसपे भी आपको स्पेसिफाई कर दे कि आपको जो है कि पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क बनाना है फॉर दिस पर्टिकुलर सिंगल लाइन डायग्राम, so this representation will help you. Similarly for zero sequence network, and this is denoted as xg0. एक चीज और आपको रखना है कि जो आपका जीरो सीक्वेंस नेटवर्क होगा, अगर मान लो सॉलिडली ग्राउंड है तो आपके रिएक्टेंस गिवन नहीं होंगे, राइट? अगर रिएक्टेंस गिवन नहीं होगा तो सिंपली आपका वो उसकी वैल्यू जीरो होगी। इन केस अगर आपका बोलेगा कि जो आपका न्यूट्रल पॉइंट है वहां पे आपकी जो है कि कुछ ईएमएफ है, सॉरी रिएक्टेंस है, राइट? या इम्पिडेंस गिवन होगा, तो उस केस में आपकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू क्या होता है, आई एन इज इक्वल टू 3 IR0 हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना? तो 3 IR0 की जगह पे थ्री इंटू IR0 मीन्स क्या, अगर मान लो 3 IR0 लिखना है, राइट? तो क्या हो जाएगा आपका, सपोज दिस इज IR1 ना, तो अगर मान लो 3 IR हमें बनाना है तो ये होगा 3XN करके, राइट? ये आपका XN क्या हो जाएगा, आपका जो है कि न्यूट्रल पॉइंट्स का, न्यूट्रल जो कनेक्टेड होते हैं फ्रॉम द ग्राउंड, उसके बीच का जो भी आपका इम्पिडेंस गिवन होगा, रिएक्टेंस गिवन होगा, वो उसकी वैल्यू होगी, राइट? एंड दिस विल बी रिप्रेजेंटेड एज 3XN। आपको जब जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स बनाना होगा तो उसमें ये आपको देखना होगा कि उसमें जो गिवन है सिंगल लाइन डायग्राम या क्वेश्चंस में कुछ भी गिवन है कि आपका क्या गिवन है। अगर मान लो सॉलिडली ग्राउंड में बोल रहा है कि कुछ भी तरह का इम्पिडेंस उसमें कनेक्टेड नहीं है, तो आपका सिंपली वो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, राइट? बट अगर आपके जो है गिवन है तो उसे आपको 3XN से रिप्लेस करना होगा, मैंने 3XN को ऐड करना होगा आपके जो भी इम्पिडेंस की वैल्यू है सीरीज में, राइट? And this is VR not, sorry, VR0, and this will be equal to what? Minus IR0 XG naught plus 3XN. This is the representation for what? Zero sequence. तो कंक्लूजन मेरा क्या निकला, कंक्लूजन ये कि ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस आपका नेटवर्क है वो कंटेन करेगा वोल्टेज सोर्स, एंड निगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस नेटवर्क डोंट कंटेन व्हाट, वोल्टेज सोर्स। इस ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफार्मर का हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आपके जो होते हैं सिंपली आपका उसके लीकेज रिएक्टेंस से हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। ये हम लोगों ने यूनिट 2 में भी पढ़ा था, राइट? इन पर यूनिट मेथड में क्या होता है कि इन पर यूनिट मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर द इन पर यूनिट हम लोग क्यों यूज करते हैं ये तो आपको पता है। तो उसमें क्या होता है कि पर यूनिट मेथड इज एम्प्लॉयड देन द ट्रांसफार्मर कैन बी रिप्रेजेंटेड व्हाट एज ए सीरीज रिएक्टेंस एलिमेंट्स ओनली, राइट? सो ट्रांसफार्मर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओनली at the what series reactance element, that is x t in per unit, right? ये आपका मान लो ओरिजिनल है, ओरिजिनल नेटवर्क है, इसका पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क भी सिंपली आपका एज इट इज हो जाएगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज x1। ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क फॉर द ट्रांसफॉर्मर, एंड नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क is represented by
रिएक्टेंस आपका जो हो जाएगा X2 से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज़ ये हो जाएगा आपका नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क एंड दिस वन इज़ व्हाट आपका ज़ीरो सीक्वेंस नेटवर्क। अब देखो क्या होगा। इसमें मेन आपके जो रिप्रेजेंटेशन में हमेशा जब भी आप बनाएँगे ज़ीरो सीक्वेंस या पॉज़िटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो, तो ख़ासकर ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट में मैंने जो बताया कि आपको जो है कि उसका न्यूट्रल पॉइंट्स आपके जो होंगे वो कंसीडर करना है, राइट? कि वो क्या है, उसमें क्या गिवन है। ये आपका हो जाएगा ज़ीरो सीक्वेंस नेटवर्क। एंड ज़ीरो सीक्वेंस आपको क्या होगा, ज़ीरो सीक्वेंस नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर हम लोग क्या करेंगे, एक स्विच डायग्राम विद द हेल्प ऑफ स्विच डायग्राम हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको वो स्विच डायग्राम पता होगा कि कैसे ड्रॉ करते हैं, तो आप लोग ईज़िली वे में नेटवर्क कंस्ट्रक्ट कर लीजिएगा। सो फॉर द ज़ीरो सीक्वेंस नेटवर्क okay, to represent transformer in zero sequence network, we take the help of switch diagram. Take the help of what? Switch diagram. This is one dash, two, and two dash. वन एंड टू आपका क्या है? सीरीज स्विच है। वन डैश एंड टू डैश आपका क्या है? शंट स्विच है। वन एंड वन डैश इज प्राइमरी स्विचेस, प्राइमरी स्विच। एंड ये आपका टू एंड टू डैश आपका क्या है? ठीक है। सो आपका जो सीरीज स्विच है दैट इज आपकी जो है कि वन एंड वन डैश, वन एंड टू, सॉरी, सीरीज स्विच इज वन एंड टू। आपके जो होंगे ये कनेक्टेड होंगे और सीरीज स्विच इज क्लोज्ड व्हेन द वाइंडिंग इज व्हाट आपका, अगर मान लो गिवन है कि आपकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो आपका जो है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज स्टार कनेक्टेड एंड न्यूट्रल ग्राउंडेड अगर रहेगा, तो आपका क्या होगा कि ये दोनों आपके जो होंगे वन एंड टू स्विच विल बी क्लोज्ड। एंड अगर आपके शंट स्विचेस क्लोज होंगे, अगर बोलेगा कि शंट आपके जो एंड शंट स्विच इज क्लोज, दैट इज वन डैश, शंट स्विच इज व्हाट, वन एंड सॉरी वन डैश एंड टू डैश, ये क्लोज होगा। कब क्लोज होगा? व्हेन द वाइंडिंग इज डेल्टा कनेक्टेड। अगर आपका कहेगा कि प्राइमरी साइड या सेकेंडरी साइड या किसी एक साइड, या तो प्राइमरी या तो सेकेंडरी, है ना, अगर गिवन है कि आपका जो है कि डेल्टा कनेक्टेड है, तो आपकी जो होगी शंट स्विच जो होंगी वो आपकी क्या होंगी? क्लोज होंगी, राइट? तो ओके, ये एग्जांपल से आपको समझाते हैं। सपोज आपका बोला गया कि आपके जो है वाई एंड डेल्टा कनेक्शन ट्रांसफॉर्मर का, राइट? प्राइमरी साइड इज स्टार कनेक्शन एंड सेकेंडरी साइड इज डेल्टा कनेक्शन।
तो हमने क्या बताया गया था कि मान लो कि आपका जो है कि क्या बोलते हैं स्टार कनेक्टेड है, राइट? तो स्टार कनेक्टेड एंड आपके जो होंगे न्यूट्रल ग्राउंड होंगे, देन आपका क्या होगा, ये सीरीज स्विच जो होगा दैट इज 1 एंड 2 जो है वो आपके क्लोज होंगे, राइट? एंड आपके अगर डेल्टा कनेक्टेड है तो ये आपका जो शंट स्विच है दैट इज 1 डैश एंड 2 डैश क्लोज क्लोज होगा। लेकिन यहाँ पे जो गिवन है ये आपका बोल रहा है कि आपका जो प्राइमरी साइड है वो स्टार कनेक्टेड है, बट आपके जो है कि न्यूट्रल ग्राउंडेड मीन्स की ग्राउंडेड नहीं है, राइट? तो आपका वन स्विच जो होगा वो तो ओपन होगा, है ना? एंड आपके जो है कि एंड वन डैश इज तो ऐसे ही ओपन होगा, राइट? शंट स्विच। एंड देन उसके बाद आपका जो टू एंड टू डैश जो है दैट इज आपकी जो सेकेंडरी स्विच बोल रहा है, सेकेंडरी में क्या बोल रहा है कि आपका डेल्टा कनेक्टेड है। तो डेल्टा कनेक्टेड में मैंने क्या बताया था कि आपका ये जो टू डैश है, राइट, शंट स्विच है वो आपका क्या होगा, क्लोज होगा, राइट? समझ में आया कि नहीं आया? देखो, सबसे पहले क्या करना है कि आपको स्विच डायग्राम को याद रखना है, ठीक है? कि ये आपका 1 एंड 2 आपका जो है ये सीरीज स्विच का लगा, ऑब्वियसली ये सीरीज में है तो सीरीज स्विच हो गया। 1 डैश एंड 2 डैश आपका शंट स्विच हो गया, ठीक है? तो क्या होगा कि आपके जो स्विचेस होंगे 1 डैश एंड 1 एंड 2 सीरीज स्विच कब आपका क्लोज होगा? जब आपका जो है कि स्टार ग्राउंडेड होगा, ठीक है? अगर मान लो इस साइड वाला जो प्राइमरी साइड वाला बोल रहा है कि आपका स्टार कनेक्टेड है एंड ग्राउंडेड भी है, ठीक है? तब आपका क्लोज होगा, नहीं तो वो ओपन रहेगा। सिमिलरली अगर टू में बोल रहा है, सेकेंडरी साइड में बोल रहा है कि आपका स्टार कनेक्टेड है एंड सॉलिडरी ग्राउंड नहीं है, तो भी आपका ओपन होगा। अगर बोल दिया कि ग्राउंडेड है तो आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है? सिमिलरली आपका शंट स्विच कब क्लोज होगा? जब आपका जो है कि प्राइमरी साइड मान लो यहाँ पे तो स्टार दिया हुआ है, मान लो डेल्टा दिया हुआ रहेगा तो क्लोज हो जाता। एंड टू अगर मान लो सेकेंडरी में बोल रहा है आपका डेल्टा कनेक्टेड है तो वो आपका क्लोज हो जाएगा। अगर डेल्टा कनेक्टेड नहीं होता तो शंट वाला तो नहीं होता, ठीक है? स्टार देता तो वो हम फिर स्टार वाला देखते कि आपका जो है ग्राउंडेड है कि नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लोज एंड ओपन करेंगे, राइट? सो कैसे इसका ड्रॉ होगा? देखो, प्राइमरी में ये बोल रहा है कि आपका स्टार है, बट आपका क्या बोल रहा है कि न्यूट्रल आपके जो है कनेक्टेड नहीं से सॉलिडरी ग्राउंड नहीं है, राइट? तो ये आपका स्विच तो ओपन रहेगा, है ना? और बीच में जो ये आपके एक्स नॉट है ये तो रहेंगे ही। एंड सेकेंडरी साइड आपका क्या बोल रहा है, डेल्टा, यानी कि आपका क्या है, शंट स्विच क्लोज रहेगा। ये आपका शंट स्विच क्लोज हो जाएगा, राइट? ठीक है? एंड इससे तो आपका कनेक्ट होगा नहीं। ये आपका वन हो गया, ये आपका टू हो गया, ठीक है? समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा, ठीक है? एक दो एग्जांपल और लेती हूँ, ठीक है? चलो, देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका जो है ग्राउंडेड तो है, विद द हेल्प ऑफ आपका एक रिएक्टेंस इसमें लगा दिया, राइट? इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राउंड भी है एंड एक आपका जो है रिएक्टेंस भी आपके इंक्लूड है। ऐड हो जाएंगे, दैट वैल्यू विल बी व्हाट 3xn, ठीक है? तो ये आपका सीरीज स्विच तो क्लोज क्लोज हो जाएगा क्योंकि ग्राउंडेड है, यहाँ पे स्टार कनेक्टेड है एंड ग्राउंडेड भी है, तो स्टार वाला जो भी होगा हम लोग सीरीज देखेंगे, तो शंट देखेंगे। हिफ्जा हसीब, बिल्कुल। अच्छा, ये आपका रिप्रेजेंटेशन होगा वन। स्टार स्टार कनेक्टेड है तो हम लोग स्विच को सीरीज स्विच को देखेंगे, अगर डेल्टा कनेक्टेड है तो हम लोग शंट स्विच को देखेंगे, राइट? तो आपका एक तो एक्स नॉट वाला पार्ट हो जाएगा और एक जो है 3xn वाला पार्ट हो जाएगा, राइट? एंड ये वाला बोल रहा है डेल्टा कनेक्टेड, तो आपका जो सेकेंडरी स्विच होगा वो जो शंट स्विच होगा वो आपका क्या होगा, क्लोज होगा, राइट? समझ में आया? किसी को समझ में नहीं आया तो आप पूछ लेंगे, क्योंकि आपका रिप्रेजेंटेशन इम्पॉर्टेंट है। आपको जो है मान लो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स बनाने के लिए दिया गया, नेटवर्क बनाने के लिए दिया गया,
तो आपको ये सब चीज़ों को ध्यान रखना होगा। राइट। सो इसी तरह से हम लोग और भी किसी भी तरह का अगर कनेक्शन गिवन है तो विद द हेल्प ऑफ स्विच डायग्राम हम लोग क्या करेंगे, नेटवर्क को बनाएंगे। स्पेशली आपको फोकस करना है जीरो सीक्वेंस नेटवर्क बनाने टाइम, राइट। हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मर पढ़ लिया, जनरेटर पढ़ लिया, ट्रांसफॉर्मर हो गया। नेक्स्ट वन इज आपका ट्रांसमिशन लाइन। फिर हम लोगों ने सेम लिया था कि आपके जो भी उसमें होते हैं शंट की वैल्यू जो होती है, जो कनेक्टेड होता है शंट में, रिएक्टेंस आपकी कैपेसिटेंस, उसे हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं एंड इसे हम लोग एज ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कंसिडर करते हैं, राइट। सो ट्रांसमिशन लाइन का जो ओरिजिनल नेटवर्क है दैट इज सिंपली आपका हो गया, एक रिएक्टेंस से कनेक्टेड होता है एंड इसमें आपका जो रेसिस्टेंस की वैल्यू एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है, इसमें क्या होता है, इग्नोर कर दिया जाता है, राइट। So this is the original network है आपका for transmission line. X1 हो गया, ये आपका पॉजिटिव सीक्वेंस हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है। So this is the representation for positive, negative, zero sequence of what transmission line. Okay. हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं कि कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। Just consider and this is generator G1, G2, ये आपका Y कनेक्टेड है। ये आपका ट्रांसमिशन लाइन है एंड द ट्रांसमिशन लाइन इज अगेन कनेक्ट किया गया है ट्रांसफार्मर से एंड इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज प्राइमरी स्टार कनेक्टेड, ये आपका एक्सएम है एंड देन फर्दर ये आपका कनेक्टेड है एंड ये आपका जो मीटर जो है वो आपके कनेक्टेड है एक्सएम न्यूट्रल जो है, ठीक है। सो ये आपका जो बेसिकली आपको गिवन है सिंगल लाइन डायग्राम है, ठीक है। इस पे आपको पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क बनाना है, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क बनाना है एंड जीरो सीक्वेंस नेटवर्क बनाना है। आपको जो है कि कैसे रिप्रेजेंटेशन आप लोगों ने पढ़ लिया कि जनरेटर का जब पॉजिटिव सीक्वेंस होगा तो उसे कैसे बनाना है, ठीक है। आपको पता है कि ट्रांसफार्मर का जो है कि पॉजिटिव नेगेटिव सीक्वेंस कैसे बनता है, ट्रांसमिशन लाइन का पता है। तो यूजिंग दोज कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है कि ड्रॉ करना है सीक्वेंस नेटवर्क, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड
0. Draw all the equipment. 3-phase sequence network. Right. ड्रॉ करना है आपको 3-phase सीक्वेंस नेटवर्क। आपके जो है x1 जो है पॉजिटिव हर किसी का जो भी आपके जो पॉजिटिव सीक्वेंस में हम लोगों ने जैसे जनरेटर को रिप्रेजेंट किया था, तो उसका जो पॉजिटिव x1 था उसे हम लोग कंसीडर करेंगे 0.1 जे 0.1 पर यूनिट वैल्यू गिवन है। ठीक है, हर रिएक्टेंस की वैल्यू आपका, चाहे आप ट्रांसफार्मर ले लें, चाहे ट्रांसमिशन लाइन ले लें या जनरेटर लें, हर किसी का जो रिएक्टेंस की वैल्यू है वो गिवन है, दैट इज 0.1 पर यूनिट। एंड एक्सएन की वैल्यू ये भी आपकी जो है 0.1 पर यूनिट की बने। इसे यूज करके सिंपली अभी मैंने कुछ सॉल्व करने के लिए नहीं दिया है कि इसमें आपको करंट निकालना है, शॉर्ट सर्किट एमवीए निकालना है, फॉल्ट करंट निकालना है, ये अभी कुछ भी नहीं दिया है। अभी सबसे पहले तो आपको इसका जो है कि रिएक्टेंस डायग्राम बनाना है। आपकी सब एक डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो उसे आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ व्हाट जनरेटर, ट्रांसफार्मर एंड ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। उसे यूज करके आपको एक नेटवर्क बनाए इसका। Okay. So this is bus number 1, 2, 3 and 4, right? अब देखिए आपका सपोज ये आप क्या करना है, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करना है फॉर दिस सिंगल लाइन डायग्राम, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। सो पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क क्या हो जाएगा, जीवन के लिए क्या हो जाएगा आपका कि एक आपके ईएमएफ होंगे एंड देन क्या होगा, एक रिएक्टेंस होगा एंड रिएक्टेंस की वैल्यू गिवन है, दैट इज 0.1 पर यूनिट है। सिमिलरली आपके जी2 के लिए क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा एक ईएमएफ की वैल्यू एंड देन रिएक्टेंस की वैल्यू, राइट। एंड देन आपका क्या आ गया कि ये आ गया, क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर, राइट। तो आपको मैंने क्या बताया कि ये जो भी कनेक्शन है, डेल्टा स्टार हो गए या स्टार स्टार हो गए, ये सब अफेक्टेड होगा आपके जब आप जीरो सीक्वेंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव सीक्वेंस में हम लोगों ने क्या देखा था कि सिंपली आपका ट्रांसफार्मर को किसे रिप्लेस करे थे, लीकेज रिएक्टेंस से, दैट रिएक्टेंस इज आल्सो गिवन 0.1 पर यूनिट, राइट। एंड सिमिलरली आपका जो दो ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, कनेक्टेड बिटवीन द बस 2 एंड बस 3 इज आल्सो गिवन, दैट इज 0.1 पर यूनिट। सिमिलरली आपका फिर नेक्स्ट ट्रांसफार्मर भी आपका क्या है, रिप्रेजेंट करना है सिंपली एक रिएक्टेंस वैल्यू से एंड उसकी भी वैल्यू क्या है, 0.1 पर यूनिट है, ठीक है। ये आपकी जो भी ग्राउंडेड है, स्टार डेल्टा, ये सब मैंने क्या बताया कि ये सब चीजें यूज होंगी जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में। तो सिंपली आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट कर देना है, दैट इज दिस वन इज E1 फॉर जनरेटर 1, इसकी वैल्यू गिवन है 0.1, ठीक है, बस 1 से कनेक्टेड है ये, ठीक है, ठीक है। ये भी आपकी क्या हो जाएगी, ये 0.1, ये E2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेरा, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का हम लोग कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस में सिंपली हम लोग कनेक्ट कर देते हैं एक रिएक्टेंस से, दैट विल बी जे 0.1, ठीक है। एक आप लोग इसे बहुत ही अच्छे से देखिएगा, अगर कहीं कुछ डाउट है तो आप पूछ लेंगे, क्योंकि अगर आप ये नहीं बता पाए ना, शुरू में ही मैंने बता दिया कि आपको रिएक्टेंस डायग्राम बनाने आना चाहिए, ठीक है। रिएक्टेंस डायग्राम बनाने आएगा तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, उससे आपका फॉल्ट करंट पूछ देगा, या आपका जो है कि बोल देगा कि बस 2 में आपके फॉल्ट आ गए हैं, तो आपका टोटल
थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रॉ करना है, तो जब तक आप रिएक्टेंस डायग्राम बना नहीं पाएंगे तब तक आप ये सब चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट? तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सिंपली रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए, आप एक नेटवर्क की तरह सॉल्व करते जाइए, राइट? एंड बस 2 एंड 2 के बीच क्या है? 2 आपके जो है ट्रांसमिशन कनेक्टेड है एंड दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय J 0.1, ये भी हो गए, ठीक है? अब नेक्स्ट वन इज बस नंबर 3 एंड बस नंबर 4, 3 एंड 4 के बीच आपका एक ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है एंड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय a reactance, राइट? एंड फोर्थ में आपका क्या है? जनरेटर कनेक्टेड है, जनरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय a reactance and a simply EMF value. Suppose this is E3. ठीक है, इसमें क्या था? कुछ तो था नहीं, सिंपली आपका पॉजिटिव सीक्वेंस बन गया इसमें, ठीक है? अब देखो नेगेटिव सीक्वेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव सीक्वेंस हमें पता है कि जनरेटर का कैसे करना है, हाउ टू ड्रॉ द जीरो सीक्वेंस नेटवर्क फॉर द जनरेटर, राइट? तो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में क्या होता है कि आपका जो ईएमएफ की वैल्यू होगी दैट विल बी जीरो, राइट? जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में देखो, तो हम लोगों ने पढ़ा कि आपके जो जनरेटर होंगे इसमें क्या होगा? ईएमएफ आपका क्या होगा? जीरो हो जाएगा। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसे एक रिएक्टेंस से रिप्लेस कर देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा इसकी वैल्यू, राइट? ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ये 0.1, ये 0.1, ठीक है? एंड इसका ट्रांसफार्मर का तो एज इट इज हो जाता है, ये 0.1। ट्रांसमिशन लाइन के केस में भी सेम हो जाएगा, जे 0.1, जे 0.1, ठीक है? ई की E3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर व्हाट? आपका निगेटिव सीक्वेंस, ठीक है? नेक्स्ट वन इज जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स का नेटवर्क बनाने में ना थोड़ा आपको यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है? देखो जीरो सीक्वेंस का नेटवर्क बनाने के लिए यही बोल रहा है कि आपका जो ये वाले पॉइंट्स हैं, जीवन तो आपका है, निगेटिव सीक्वेंस में भी हम लोगों ने यही पढ़ा कि आपकी जो ई की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है? अब ये कनेक्टेड होगा नहीं कनेक्टेड होगा ये डिपेंड्स करेगा आपका न्यूट्रल पे, ठीक है? कि आपका ग्राउंडेड है कि नहीं ग्राउंडेड है। देखो जीवन आपका क्या बोल रहा है कि ग्राउंडेड नहीं है, G2 आपका ग्राउंडेड है एंड G3 इज ऑल्सो ग्राउंडेड, ठीक है? एंड ये आपका जो है डेल्टा एंड वाई स्टार जो कनेक्टेड है, ये आपको विद द हेल्प ऑफ स्विच डायग्राम जीरो सीक्वेंस बन जाएगा। सिमिलरली आपका इस ट्रांसफॉर्मर के लिए हम लोग ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्विच डायग्राम, राइट? सो ये आप देखें कैसे बनेगा जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। सो सबसे पहले हम लोग जनरेटर का बनाएंगे जीवन, जो कि आपका बोल रहा है स्टार कनेक्टेड है, ठीक है? स्टार कनेक्टेड है, ई तो जीरो ही होगा, ठीक है? बट ये आपका जो है कि न्यूट्रल से कनेक्ट नहीं होगा। एंड नेक्स्ट जनरेटर क्या बोल रहा है कि ये कनेक्टेड है आपका ग्राउंड से, ये हो गया। अब देखें एंड ट्रांसफार्मर का कनेक्शन क्या हो रहा है? डेल्टा एंड वाई स्टार बता रहा है ना? तो डेल्टा एंड वाई स्टार में क्या मैंने बताया था कि जो सीरीज स्विच होगा, स्विच स्विच होगा, जब स्टार होगा तो स्विच स्विच को देखेंगे, डेल्टा होगा तो हम शंट स्विच को देखेंगे, ठीक है? तो मेरा यहाँ पे बोल रहा है प्राइमरी साइड डेल्टा कनेक्टेड है तो मेरा शंट स्विच कनेक्टेड होगा, ठीक है? तो ये आपका शंट स्विच कनेक्टेड होगा, ये 0.1, ठीक है? एंड देन नेक्स्ट आपका क्या है? दो ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड है, इसका तो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क वही होता है, 0.1, ये 0.1 सेम होते हैं। एंड देन उसके बाद फिर से अगेन आया आपका क्या? बोल रहा है कि आपका जो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर है दैट इज कनेक्टेड, आपका क्या है? स्टार कनेक्टेड है, स्टार कनेक्टेड है और दोनों जो है आपका ग्राउंडेड है। एक आपका जो है कि द हेल्प ऑफ ग्राउंडेड है रिएक्टेंस के थ्रू और एक आपका सॉलिडली ग्राउंडेड, राइट? तो आपका इसमें क्या होगा? सीरीज स्विच आपका जो होगा क्लोज होगा, राइट?
सो ये तो सिंपली सी स्विच कनेक्टेड होगा एंड इसकी वैल्यू जो होगी आपकी जे 0.1 एंड वो जो आपका कनेक्टेड है एक्सएन, इसकी वैल्यू जे 0.1 दी हुई है, तो आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू जे 0.1, दैट विल बी इक्वल टू 0.3 जे। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो ट्रांसफार्मर है वो बोल रहा है कि आपका जो है कि वो ग्राउंडेड है, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ रिएक्टेंस एक्सएन से, एंड उसमें भी ईएमएफ की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी सेम आपका जो हो जाएगा, एक तो आपकी जे 0.1 होगी एंड जो दूसरी रिएक्टेंस होगी दैट विल बी 0.3 जे। So this is the representation for zero sequence network. Are you getting my points or not? अगर if you have any doubt regarding this आपके जो है कि concept, that is positive sequence, negative sequence and zero sequence while making the reactance diagram, so please आप हमें बताएं, मैं बताऊंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे ड्रॉ करना है हर चीज के लिए, क्योंकि ये आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बन नहीं पाएगा। ठीक है, तो आपका ये ड्रॉ करना, इसे ड्रॉ करना आना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? ओके इसमें ओके, आपकी जो नेक्स्ट यूनिट एग्जाम होने वाली है ना सबसे 22 से शायद, आई थिंक। यस मैम, नेक्स्ट वीक से। हाँ, तो देखते हैं इंशाल्लाह, कल ले लूंगी क्लास, तो कल तक जितना पढ़ाया होगा उसी से आपका क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यूनिट 4, यूनिट 3 एंड 4, ठीक है, ये दोनों यूनिट हम आएंगे। कल ठीक है, हॉलीडे है। कल हॉलीडे है, अच्छा ठीक है, वैसे भी मैंने 4th यूनिट ऑलमोस्ट पढ़ा ही दिया है। ठीक है, तो आपका जो है कि जो नेक्स्ट आपके जो सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे, सेकेंड जो मिड सेमेस्टर है आपका सेशनल, वो आपका होगा यूनिट 3 एंड यूनिट 4। ठीक है, रोल नंबर 1